ہم سب جب اس کی حضوری میں آئے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر کے آئے کہ ہمیں آج خدا برکت دے گا. آمین. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. جتنے بھی ہم آج اس کی حضوری میں آئے, آج سب اس سے برکت پا کے جائیں گے. خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں گواہی دینی ضروری ہے. آمین. گواہی دینی ضروری ہے. آج گواہی کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا ہے اور کیوں ہمیں گواہی دینی ضروری ہے. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس گواہیاں ہیں, ٹیسٹمنیاں ہیں, ہماری بہنوں کے پاس, ہمارے بھائیوں کے پاس, مگر کبھی کبھی دشمن نہیں چاہتا کہ ہم گواہی دیں. دشمن چاہتا ہے کہ ہمارا منہ بند رہے. میں جد چپ رہا تے تد میری ہڈیاں کراندے ہوئے سک گئیاں, گل گئیاں. ہم جب گواہی اپنے اندر رکھتے ہیں نا اور پھر اس کو ہم بتاتے نہیں ہیں اور شیئر نہیں کرتے, تو ہماری شفا, ہماری برکتیں, ہمارے ساتھ جو بھی خدا نے بڑے بڑے کام کیے نا, وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ سیل نہیں ہوتے. وہ سیل نہیں ہوتے, وہ دوسروں تک پہنچتے نہیں ہیں. اور پھر دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں گواہی میں, جو کہ پتہ نہیں چھوٹے سے 2 الفاظ سے, چھوٹی سی 1 منٹ کی, آدھی منٹ کی گواہی کے ساتھ پتہ نہیں کسی کی زندگی بدل جائے. کسی کی زندگی بدل جائے. آج خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کچھ باتیں. آج ہماری بہن ورجینیا سے پاسٹر ہزقیل سروش کی بہو سحر سروش, انہوں نے آنا تھا اپنی گواہی شیئر کرنے کے لیے. وہ کہنے کی پاسٹر صاحب مجھے خداوند نے آپ کی دعاؤں سے, جیسے جب آپ نے دعا کی ہے, ان کی کہنے لگی میری بہن بھابی, بہن باجی اسٹالا نے جب دعا کی ہے, خداوند نے مجھے بڑی برکت دی ہے, خداوند نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے, رحم کیا ہے. تو میں نیو یارک آ کے چرچ میں گواہی دینا چاہتی ہوں. آمین. تو بٹ آج وہ کسی طریقے سے نہیں ہو سکا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ تو تیار تھے اپنے بچوں کے ساتھ, تیار, دونوں بچے چھوٹے چھوٹے, 5 مہینے کا ایک بیٹی ہے اور بڑا بیٹا 2 سال کا ہے میرا. تو وہ تیار تھے, مگر اچانک اس ویک میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی فیلاڈلفیا میں, اور مجھے اور سالہ کو ہمیں کل سیٹرڈے کو یعنی فیونرل کے لیے وہاں پر جانا پڑا. اس کی وجہ سے روفس اور سحر کو ہم نے روکا کہ ورجینیا سے نہ آئیں, کیونکہ ہم لوگ کل سارا دن ہمیں اسی میں بیت گیا. تو اینی گواہی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, اور لوگ کہاں سے دور دور سے گواہیاں دینے کے لیے آتے ہیں. خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے, خدا خود سب سے بڑی بات, جو پہلی بات جو ہے نا, ہمیں خدا کی گواہی کو اپنے اندر رکھنا ضروری ہے. جو خدا گواہی دیتا ہے, خدا کا پاک روح جو گواہی دیتا ہے, خدا کی طرف سے اس کے کلام میں جو اس کی ڈیٹی کی, اس کی قدرت اور اس کے بڑے بڑے کاموں کی گواہیاں, اور اس کے سب سے بڑا اس کا جو کام تھا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے, وہ سب سے بڑی گواہی خدا کی ہے. آمین. اور خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, زندہ خدا کا زندہ بیٹا ہے, اور وہ عبدالآباد زندہ ہے. آمین. وہ مر گیا, دفن ہوا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہ گواہی ہے, انجیل کی گواہی ہے, یہ گاسپل ہے, یہ خوشخبری ہے. آمین. یہ گواہی سب سے پہلے ہماری زندگی میں ہونی ضروری ہے, تب ہی ہم اگلی گواہیاں دیں گے. خدا کے پاک اور جب یہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے, خداوند یسوع مسیح زندہ ہے, خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا مسیح ہے. آمین. جو اس دنیا میں آیا ہمارے لیے, وہ انسان بنا اور اس نے ہمارے لیے مار کھائی, وہ ہمارے لیے اس نے صلیب اٹھائی, وہ مر گیا اور وہ پھر دفن ہوا, اور وہ اب زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ گواہی جب ہمارے اندر ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی پاک گرو جو ہے ہمارے اندر دوسری گواہیاں پیدا کرتا ہے. آمین. اگر یہ گواہی نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر کوئی بھی گواہی نہیں ہوگی. اور گواہی جو ہے وہ خداوند یسوع کی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. کسی کی گواہی نہیں ہے. اگر کسی نے, میں نے, آپ نے, کسی میں نے, ہم نے کسی کے لیے اگر دعا کی بھی ہے تو وہ ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے, ہم سب کا کام ہے. آمین.
जो क्योंकि खुदावंद ने हमें यीशु नाम की अथॉरिटी दिया, उसने अपना कलाम दिया, अपना लहू दिया, अपने यीशु नाम की उसने इख्तियार दिया हमें, आपको, मुझे, सबको। आमीन। तो अगर किसी की जिंदगी में कोई काम होता है तो ना आपका कमाल है, ना मेरा कमाल है, ना किसी का, बट खुदावंद यीशु मसीह का कमाल है वो। हालेलुया। उसकी कुदरत है, उसका प्यार है, उसका फजल है जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की जो गवाही है, खुदा उनके कलाम में से देखते सबसे पहले खुदा की गवाही, जो खुदा क्या कहता है कि मेरी गवाही जो है वो क्या है। पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 9 से 11 आयत हम पढ़ते हैं। और अगर आपको अगर स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो ठीक है, उसमें से पढ़ लेते हैं, और अगर नहीं तो अगर जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल सकते हैं, बाइबल में से हम पढ़ लेते हैं उसको। खुदा का कलाम कहता है, पहला यूहन्ना, 1 जॉन, एपिस्टल ऑफ जॉन, चैप्टर 5 वर्स 9 to 11। पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 9 से 11 आयत तक लिखा है। 9वीं आयत में, जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बढ़कर है। आमीन। हम आदमियों की गवाही तो कबूल कर लेते हैं, कोई भी गवाही देता यहां पे खड़ा होके ना, हम उसको कबूल करते हैं। आमीन। हमें पता होता है कि ये बंदा पुलपिट पे खड़ा होके गवाही दे रहा है तो सच बोल रहा है, सच्ची गवाही ही है। तो यहां पे यूहन्ना कहता है कि हम अगर आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो उससे बड़ी है। हालेलुया। खुदा जो गवाही देता है वो उससे बड़ी है, खुदा की गवाही उससे बढ़कर है। मैंने येलो हाईलाइट जो वर्ड्स किए हैं उन पर आपने गौर करना है, ठीक है, कि खुदा की गवाही जो है वो तो उससे बढ़कर है। मेरी, आपकी, हमारी, आदमियों की जो भी ह्यूमैनिटी की गवाही, जो जिसके साथ जिस पर खुदा का फजल होता है वो गवाही देता है, वो खुदा की गवाही उससे बढ़कर है। और खुदा की गवाही ये है, ठीक है, सब बोलेंगे खुदा की गवाही ये है। आमीन। कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। हालेलुया। खुदा की गवाही यह है कि उसने अपने बेटे के हक में गवाही दी है। आमीन। सबसे पहली गवाही वहां पे आपको पता है, खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब पानी से ऊपर आए तो लिखा है कि पाक रूह जो रूहुल कुद्दस कबूतर की मानी उन पर आकर ठहर गया, आसमान खुल गया। आमीन। और आसमान से ये आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। वो खुदा की गवाही है अपने बेटे के लिए जो खुदा देता है। और उसके बाद देखते हैं और भी गवाही, खुदा की जो गवाही है। 10वीं आयत, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि जब तक हमारे अंदर खुदा के बेटे की यह गवाही नहीं, खुदावन यीशु मसीह की यह गवाही नहीं है कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है, दुनिया में बहुत मजहब ऐसे हैं, सबसे इस्लाम में भी और उसके अलावा दूसरे मज़ाहिब जो भी किसी भी तौर पर मानते हो, पर इस बात से इनकार है कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर खुदा, क्योंकि खुदा रूह है और खुदावन यीशु मसीह भी रूहानी तौर पर खुदा का बेटा है। आमीन। उसमें ये हमारे ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये कलाम सिखाता है, और जिसकी अपनी तालीम जो भी है सिखाती है, उसकी बात नहीं हम कर रहे, ठीक है। हम बाइबल की बात कर रहे हैं जो बाइबल सिखाती है, जो बाइबल आज से कई हजार साल पहले से लिखनी शुरू की गई। मूसा ने जब तौरात की किताबें लिखी, उसके बाद अंबिया के सहीफे हैं, नबियों ने जो किताबें लिखी हैं, उसके बाद जो 1st सेंचुरी में अनाजील लिखी गई हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने, उसके बाद पौलुस रसूल के खत हैं और आम खत हैं, खुदा यीशु मसीह के अपने जो भाई जो मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ से पैदा हुए भाई, वो उनके भी 2 खत हैं, याकूब का खत और यहूदा का खत। उन्होंने भी ये गवाही दी है, ये लिखा है। आमीन। हम इंजील की, बाइबल की, खुदा के कलाम की बात कर रहे, किसी की तालीम की बात नहीं कर रहे। अगर कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये उनको ऐसा सिखाया गया है, उनकी किताबों में ऐसा लिखा है कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं और खुदा का बेटा कोई हो नहीं सकता। दैट्स ओके। उनका
किसी का भी कोई भी ईमान हो सकता है, उससे कोई हमें कोई वो इतराज नहीं है। मगर हम खुदा उनके कलाम की बात कर रहे हैं, तो खुदा 10वीं आयत में क्या कहता है? जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। हालेलुया। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया, जिसने खुदा का यकीन नहीं किया, हम सब और दूसरे मज़ाहिब में भी यह समझा जाता है, माना जाता है कि यह बाइबल खुदा का कलाम है। अंजील मुकद्दस खुदा की तरफ से उतरी हुई किताब है। इंसानों ने बेशक पेन से लिखा है, मगर यह पाकरू की तहरीक में पाकरू इसका ऑथर है और पाकरू खुदा है। हालेलुया। तो ये पाकरू ने जो लिखवाई है, ये पाकरू खुदा की बातें हैं जो इसमें लिखी गई हैं। बेशक ट्रांसलेशंस में कुछ कभी कभी अल्फाज में कुछ इधर उधर हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, मगर ये मफहूम और ये रूमर या ये कहना कि बाइबल बदल गई है, बाइबल कभी नहीं बदली, बाइबल कभी बदलेगी भी नहीं। खुदा का कलाम है, वो कभी नहीं बदल सकता। ट्रांसलेशंस में वर्ड्स इधर उधर कभी हो जाते, कभी कम हो जाते, कभी ज्यादा, या बट शुरू से लेकर अब तक हर बाइबल की ट्रांसलेशन जो हुई है, किसी में से यह चीज नहीं निकाली गई कि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। किसी बाइबल इंजील या किसी से बाइबल की ट्रांसलेशन में से यह नहीं निकाला गया कि खुदावन यीशु मसीह वो सलीब पर नहीं हुआ, या वो मरा नहीं, या वो दफन नहीं हुआ, या मुर्दों में से तीसरे दिन जी नहीं उठा। ये किसी बाइबल की ट्रांसलेशन में आज तक कभी ये बात चेंज नहीं हुई, और यही बाइबल है, यही गॉस्पेल है, यही इंजील है। हालेलुया। जिस बाइबल में ये है, इसका मतलब है कि वो बाइबल चेंज नहीं हुई है। ट्रांसलेशन में बेशक इधर उधर हो जाते हैं, ट्रांसलेशन जब करते हैं। खुदावन के कलाम में 10वीं आयत में लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। खुदा को यानी झूठा ठहराया। अगर कोई कहता है ये खुदा का कलाम है और खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखता, तो वो खुदा को झूठा ठहराता है। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने, किसने? खुदा ने। हालेलुया। खुदा ने, वो क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। हालेलुया। आप सब ईमान रखते हैं खुदा के बेटे यीशु पर? हालेलुया। सब ईमान रखते हैं। प्रेज गॉड, ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने इंटरनेट, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी हैं, आप भी अपने हाथ घर में खड़े कर सकते हैं, जहां पर भी अगर खुदा यीशु पर, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। अदरवाइज हम खुदा को झूठा ठहराते हैं, फिर इस कलाम को भी झूठा ठहराते हैं जो सारी दुनिया में जिसकी मुनादी हो रही है उस खुशखबरी की। आमीन। 11वीं आयत, और वो गवाही ये है, यानी खुदा के बेटे की जो गवाही है, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। एक और ये गवाही है खुदा की, जो पाकरू हमारी जिंदगी में देता है, और पाकरू खुद हमारी जुबान से इस बात का इंकशाफ या ऐलान करवाता है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और यह जिंदगी उसके बेटे में है। हालेलुया। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। यूहन्ना 15:16 आयत में चलते हैं। खुदा की गवाही की बात कर रहे हैं हम, आगे और भी गवाहियों की बात करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जब तक ये सब गवाही जो खुदा की गवाही है उस पर हमारा ईमान नहीं और उसमें हम चल नहीं रहे, तो हमारे अंदर कोई गवाही नहीं होगी। आमीन। और हम गवाही शेयर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारी मदद नहीं करेगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा था ना अपने शागिर्दों को कि जब वो आसमान पर जाना था, तो खुदा यीशु मसीह कहा तुम इस शहर में ठहरे रहना,
जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और इमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर ही तब ही तुम मेरे गवाह होगे, पहले यहूदिया में, यानी पहले अपनी फैमिली में, फिर सामरिया में, फिर घर से बाहर मोहल्ले में, कलीसिया में, यरूशलेम में, सामरिया में, फिर दुनिया की इंतहा तक तुम्हें मेरे गवाह होगे। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो उसकी गवाही के लिए। यूहन्ना 15 बाब उसकी 26 आयत में यूं लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। लेकिन जब वो मददगार आएगा, खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक। रूह हक का मतलब है सच्चा रूह। आमीन। कोई बदरू सच नहीं बोलती, कोई दूसरी रूह सच नहीं बोलती। हम इंसान, हमारे अंदर भी रूह है। हम भी बहुत दफा झूठ बोलते हैं, और मगर हमारी रूह जब खुदावंद के साथ मिल जाती है, उसके साथ हमारा मेल हो जाता है, जब हम तौबा करते, अपने गुनाहों की माफी मांगते और खुदावंद से तौबा करते, खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, हमारा मेल फिर बाप के साथ हो जाता है, पाक रूह के साथ हो जाता है, यीशु मसीह के साथ हो जाता है। तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा, खुदा का बंदा जो है वो झूठ नहीं बोलता। आमीन। हम झूठ नहीं बोल सकते। फिर भी शैतान हमारी जिस्मानी हालत से, हमारी जो जान है, हमारी जो जिस्मानी हालत है, हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो मिट्टी का बदन है, उससे वो झूठ जरूर बुलवाता है, क्योंकि वो झूठा है। आमीन। इब्लीस झूठा है। खुदा के कलाम में लिखा, यूहन्ना की इंजील में ही लिखा हुआ है कि बल्कि वो झूठ का बाप है। वो शुरू ही से गुनाह करता आया है, वो कातिल है, वो खूनी है, वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। इसलिए वो हमसे झूठ बुलवाता है। हमारी रूह अंदर से नहीं चाहती कि हम झूठ बोलें, क्योंकि उसका मेल खुदा के साथ हो गया है। आमीन। तो वो सच्चाई का रूह, लिखा है कि वो सच्चाई का रूह जब आएगा जो बाप से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो पाक रूह मेरी गवाही देगा। और वो पाक रूह कैसे गवाही देगा? वो पाक रूह मेरे और आपके अंदर होकर जब काम करता है तो हमें वो बोल्डनेस आती है, हमें वो इख्तियार का पता होता है, हमारे अंदर एक वलवला, एक जोश, एक ऐसा अंदर गवाही हमारे उबलनी शुरू हो जाती है कि हमें जरूर बताना है ये कि खुदावन मेरे खुदा ने कैसे बड़े बड़े काम किए। अभी ज़बूरों में हम ज़बूर नवीस की ज़ुबानी भी हम देखते हैं कि वो कैसे कहता है कि हमें किस तरीके से गवाही देनी जरूरी है। आमीन। तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। आमीन। अगर खुदावन यीशु हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं तो फिर ही हम उसकी गवाही दे सकते हैं। अदरवाइज दुनिया हमें रोकती है गवाही देने से, क्योंकि इब्लीस हमें रोकता है जो इस दुनिया का सरदार बना हुआ है। आमीन। तो इसीलिए हम बरकत पानी कम हो जाती है, कभी कभी हमारी बीमारियां वापस आ जाती हैं, कभी कभी हमारी वही सिचुएशन वापस आ जाती है जिसमें खुदा ने काम किया होता है और हमने गवाही नहीं दी होती, हमने गवाही को दबा के रखा होता है। वो हमने नहीं रखा होता, इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा की गवाही दें, खुदा का पाक रूह खुदा के बेटे यीशु की गवाही दे कि उसने हमारी जिंदगी में क्या किया है। आमीन। आगे चलते हैं। ज़बूरों में कुछ ज़बूर नवीस एक गवाही के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताता है। ज़बूर 22 उसकी 22 आयत, ज़बूर 22 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा। हालेलुया। ज़बूर नवीस कहता है मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा। हालेलुया। हम भी ऑल द टाइम
ऐसे कह सकते हैं कि हम भी अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से यीशु के नाम का इजहार करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है आदमियों को कोई और नाम बख्शा नहीं गया, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम बख्शा नहीं। अमाल 4 बाब में लिखा है कि जिसके वसीला से नजात हो, जिसके वसीला से बदरूहें भागे, जिसके वसीला से जो बीमारियां दूर हों, जिसके वसीला से और सिचुएशंस जो हैं वो यीशु के आगे झुक जाती हैं। यीशु नाम, जैसे हम वो अभी गीत गा रहे थे, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। हालेलुया। पहाड़ों से भी कहोगे यीशु के नाम से हट जा तो वो हट जाएगा। हालेलुया। इतनी कुव्वत और कुदरत है। तो मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा और जमायत में तेरी सताइश करूंगा। हालेलुया। जमायत क्या है? जमायत वो है जब हम सब मिलकर जमा होते हैं। संडे को इबादत भी, इसको भी जमायत बोल सकते हैं। और घरों में भी जब इबादतें होती हैं, किसी भी जगह पर हम इबादत के लिए जमा होते हैं, वो जमायत बोलते हैं, मजमा बोलते हैं। जहां पे भी लोग जमा होंगे मैं तेरी सताइश करूंगा। आई विल प्रेज यू, आमीन। आई विल डिक्लेयर, मैं प्रेज करूंगा। और अगले आगे चलते हैं। ज़बूर नवीस क्या कहता है? 66 ज़बूर की 16 आयत, 66 ज़बूर उसकी 16 आयत लिखा है, ऐ खुदा से डरने वालों सब आओ सुनो। गवाही सुनने के लिए जरूरी होती है। जब भी कोई गवाही दे तो जरूर गौर से सुने कि अगले बंदी की या किसी बच्चे की, जवान की, बूढ़े की, किसकी जिंदगी में खुदा के बंदे की खुदा ने क्या काम किया है। आमीन। बड़े ध्यान से सुननी होती है गवाही। और खुदा का कलाम कहता है, ए खुदा के, ज़बूर नवीस इस बात को अपने मुंह से बड़ी जोर से, मेरे लिए, आपके लिए, सब ये कह रहे, ए खुदा से डरने वालों सब आओ और क्या करो? सुनो, सुनो और मैं बताऊंगा। हम गवाही बताते हैं। हालेलुया। हम वो बात बताते हैं कि मेरे लिए खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया है। हालेलुया। मैं बताऊंगा, तुम सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हमें गवाही देनी होती है कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है, उसके यीशु नाम से मेरी जिंदगी में क्या क्या काम हुए हैं। हालेलुया। मैंने जो ईमान रखा। ज़बूर 71 उसकी 14 से 18 आयत तक कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, कुछ डिक्लेरेशंस भी हैं और कुछ हमारे लिए बड़े फायदे की बात है कि ज़बूर नवीस कहता है, लेकिन 14वीं आयत से 71 ज़बूर 71 साम 71 14 to 18 वर्स, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ करूंगा। हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं तो ऑलवेज गवाही देने के साथ यही कहे कि हम खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में यह किया है। हालेलुया। मैं हमेशा तेरी तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। हालेलुया। और भी ज्यादा किया करूंगा। पहले तो मैं करता ही था। हालेलुया। ये जो काम खुदा ने किया है, इससे पहले भी मैं तारीफ करता था, मगर अब मैं और ज्यादा किया करूंगा, तारीफ और भी ज्यादा किया करूंगा। 15 आयत, मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी निजात का बयान दिन भर करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम गीतों में भी गवाही देते हैं और हम अपने मुंह से जब तक गवाही नहीं देते हमारी बात पूरी नहीं होती। आमीन। हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। और खुदा का कलाम कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि मेरा मुंह तेरी सदाकत यानी तेरी सच्चाई और तेरा जो कलाम है, सच्चा कलाम है जिसने मेरी जिंदगी में काम किया है, वो तेरी नजात का बयान दिन भर करेगा। हालेलुया। मेरा मुंह तेरी नजात का, के खुदावन के मेरी अच्छे कामों की वजह से नहीं, मेरे किसी और गुड डीड की वजह से नहीं, मेरे और जो कुछ भी मैंने किया है वो मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि हमें उसके फजल ही से नजात मिली है। हालेलुया। मैं इस बात का ऐलान दिन भर मेरा मुंह किया करेगा कि खुदावन ने अपने फजल के वसीला से मुझे नजात दी और हमेशा की जिंदगी बख्शी है। हालेलुया। 16 मैं खुदा की कुदरत के कामों का
इजहार करूंगा। हालेलुया। मैं उसके खुदा की जो कुदरत ने मेरी जिंदगी में काम किया, मैं उसके कुदरत के कामों का इजहार करूंगा। हालेलुया। ये सब गवाही के तरीके हैं, बयान करना, इजहार करना, बताना, हालेलुया, सताइश करना, उसकी तारीफ करना, ये गवाही में शामिल होता है। जब भी हम गवाही दें, ये सारे वर्ड्स भी उसमें शामिल कर सकते हैं। खुदा खुश होगा, खुदा का पाक रूह खुश होगा, खुदा यीशु खुश होगा, और लोग भी खुश होंगे, बरकत पाएंगे जब हम इन अल्फाज के साथ गवाही देंगे। हालेलुया। ज़बूर नवीस हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। अगली लाइन 16 आयत की 71 ज़बूर 71 में से हम पढ़ रहे हैं, 71 साम में से, और आखिरी इसकी 16 आयत की दूसरी लाइन जो है, लिखा है, मैं सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। किसका? सिर्फ तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। पादरी डैरी की नहीं, हालेलुया, बाजिसाला की नहीं, और किसी पास्टर की नहीं, किसी की भी नहीं। आमीन। जब गवाही दें, खुदावन यीशु की गवाही दें, खुदा बाप की गवाही दें, उसके पाक रूह की गवाही दें कि उसने, वो जो सच्चा खुदावन है, उसने मेरी जिंदगी में यह काम किया। हमारा वो, मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम किसी के लिए दुआ करते हैं, वो हमारा काम है। आमीन। वो हमारी कमीशन है, हमारा फर्ज है सबका। आमीन। क्योंकि खुदा ने हम उसको पहचानते हैं, या कोई ऐसा समझता है कि आप दुआ कर सकते हैं, तो आपको कोई रिक्वेस्ट देता है, या आप किसी को कहते हैं, तो आप भी अपने ईमान में कहते हैं कि चलें हम दुआ करते हैं इस बात के लिए। आमीन। तो हमने बट जब गवाही देनी है तो यही कि मैं सिर्फ तेरी ही, ठीक है, तेरी ही सदाकत का जिक्र करूंगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदा उनको जलाल मिलेगा, खुदा उनको जलाल मिलेगा। अगली 17 वर्ष, हमने 18 वर्ष तक पढ़ना है। ऐ खुदा, ज़बूर 71 की 17 वर्ष, 17 वर्ष, ऐ खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ठीक है, तू बचपन से मुझे सिखाता आया है, और मैं अब तक तेरे अजायब का बयान करता रहा हूं। ऐ खुदा, 18वीं आयत, ऐ खुदा जब मैं बूढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना। हालेलुया। हम ऑलवेज जब हम गवाही देते हैं, और गवाही दे के उसके बाद फिर खुदावन से शुक्रगुजारी की दुआ करें, तो खुदावन से कहें कि खुदावन मैं बचपन से ये जो कुछ तूने मेरी जिंदगी में किया है, मैं तेरे हर अजीब काम का बयान करता रहा हूं। मैं हर बात की गवाही तेरे मजमों में अपने भाइयों से, बहनों से, अजीजों से, कुलीग से, चर्च में, कांग्रीगेशन से, कलीसिया से, हर एक से मैं तेरी अजीब कामों का बयान करता रहा हूं, गवाही देता रहा हूं या रही हूं। तो खुदावंद मुझे अब भी, जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो मेरा सर सफेद भी हो गया, तो खुदावंद तू मुझे तर्क ना करना, क्योंकि मैंने हमेशा तेरे नाम को जलाल दिया है, हमेशा तेरी तारीफ की है बड़े सब लोगों के सामने, सरेआम। हालेलुया। और जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुष्ट पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना कर दूं। आमीन। मेरे किसी बात को तर्क न करना। अजीजों, हमारी गवाही का अगली पुष्ट में भी शामिल होना या ट्रांसफर होना जरूरी है। आमीन। हमें सबको बताना जरूरी है कि खुदा ने मेरी जिंदगी में क्या क्या काम किए हैं। 107 ज़बूर, उसकी पहली 2 आयतें, लिखा है, खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। खुदावन के छुड़ाए हुए यही कहें, खुदावन के छुड़ाए हुए यही करें। अगर आप खुदावन के छुड़ाए हुए हैं, यहां पर मैं ऐलान करता हूं, मैं खुदावन का छुड़ाया हुआ हूं। हालेलुया। अगर आप भी खुदावन के छुड़ाए हुए हैं तो यही कहें, जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया है। आप ये कहें, मुझे खुदावन ने फिदिया दे के मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया है। मुझे खुदावन ने फिदिया देकर, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन यीशु ने अपना फिदिया दिया है हमें। सबसे पहला बड़ा मुखालिफ जो हमारा कौन था? गुनाह, मौत। वो हमारा मुखालिफ था जो हमें हेल में ले जाना मांगता था, और ले जाना अभी भी उसका यही मिशन है, उस मुखालिफ का। मगर खुदावन यीशु मसीह ने अपना फिदिया देकर मुझे और आपको उस मुखालिफ के हाथ से छुड़ाया है। मौत, गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस,
खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद का कलाम हमें बताता है, खुदावंद यीशु मसीह भी हमें कहते हैं कि हम अपनी गवाही दें। मरकस 5 बाब 19 आयत और 20 आयत में हम पढ़ते हैं, एक कहानी है। खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ झील के पार जाते हैं। पहले झील में तूफान भी आ जाता है, फिर वो झील के पार जब पहुंचते तो गनेसरत का इलाका होता है। गनेसरत के इलाके में एक शख्स था जिसमें बदरूहें थी, बदरूहों का लश्कर था उसके अंदर, और वो उसको उसके घर वाले वो कब्रिस्तान में ही छोड़ आए थे। उसके बारे में लिखा है बहुत दफा उसको चेनों से, रस्सियों से बांधा गया था, मगर वो उनको ऐसे तोड़ लेता था जैसे कच्ची रस्सी होती है, किसी के काबू नहीं आता था। खुदावंद यीशु मसीह उस एरिया में पहुंचते हैं तो वो खुद ब खुद वहां से निकल के खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसके कदमों में झुक जाता। खुदा के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम है, मुझे हमें हलाक ना करना। हालेलुया। वो कहते मुझे हलाक ना करना। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसके अंदर से उस सारे लश्कर को कहा कि निकल जाओ, इसमें से बाहर आ जाओ। वो शख्स जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। और हालेलुया। और आजाद होकर फिर खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे होते, उनके पास बैठा तो लोग हैरान होते हैं पर कि ये वही शख्स है जिसको हम बांध भी नहीं सकते थे। ये अपने राइट माइंड में, अपनी होश और हवाश में, अपने सही साफ सुथरे कपड़े पहनकर यहां पर खुदावंद के कदमों में बैठा हुआ है। और वो खुदावंद के पीछे जाना चाहता था, खुदावंद यीशु मसीह का पीछा छोड़ना नहीं चाहता था। मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यहां पर लिखा 19 आयत में, यीशु ने गवाही देने को कहा, लेकिन 19 आयत में लिखा है, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स को जो बदरूहों से आजाद हुआ था उसको इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने लोगों में जा, अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अपने लोगों में जाकर गवाही दे जाके, आमीन, अपने लोगों को बता जाके कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, कि तुझे आजाद किया आज। हालेलुया। बेटा जिसको आजाद करे वही आजाद होता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदा का बेटा जिसको आजाद करे वही आजाद हो सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। कोई उसको आजाद ना कर सकता था, बल्कि उसको चेनों से बांधा करते थे, फिर भी वो छुड़ा लेता था, तोड़ लेता था। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मुकम्मल तौर पर उन बदरूहों से आजाद किया। हालेलुया। वो चाहता था फिर यीशु का पीछा भी ना छोड़े, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू पहले अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने गांव वालों को तू गवाही दे दे जाके पहले। अगले मत्ती 10 बाब में उसकी 32 और 33 आयत में लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। हमारी जिंदगी में अजीजों, ये आज लिखने का मकसद ये था, हमारी जिंदगी में जब खुदा बड़े बड़े काम करता है, गवाही होती है, तो हम जब उसको दबा कर रखते हैं और गवाही शेयर नहीं करते, इजहार नहीं करते, बयान नहीं करते, बताते नहीं है, खुदा उनकी तारीफ नहीं करते उस गवाही के वसीला से, तो क्या होता है, हम इसका मतलब है कि इब्लीस हमारी जिंदगी में काम कर रहा है कि यीशु का इनकार करें, कि हम किसी को बताएं ना कि यीशु ने ये काम किए हैं। हम शायद कभी डॉक्टरों का बता देते हैं कि ये डॉक्टर ने मेरे लिए ये दवाई उसने लिख के दी, ये दवाई उसने चेंज की, मुझे इससे शिफा मिल गई, या मैंने डॉक्टर चेंज किया, उसने मेरे लिए मेरा इलाज किया, ये इसलिए मैं ठीक हो गया। या कभी कभी हम किसी हकीम की तारीफ करते कि या कोई और भी कुछ हम बड़े बड़े काम। एक मैं आपको मैंने शेयर किया, वो पहले भी एक दो लोग अपने लोगों से, इसी चर्च में, इंग्लिश चर्च जो है, उसमें एक खातून थी, बच्चों की माँ, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसको कैंसर डायग्नोज किया डॉक्टर ने, और वो प्रेग्नेंट भी थी।
تو اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو بیبی پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ تجھے کینسر ہے، یہ بچے کے لیے بہت خطرناک ہے، یہ بچہ تو یہ پیدا پتہ نہیں ہو بھی نہ ہو یا کیا ہو جائے بچے کی زندگی میں۔ تو وہ بہت پریشان تھی۔ تو اس نے چرچ نے ہمیں بھی پریئر ریکویسٹ دی، ہم بھی دعا کر رہے، اور وہ پورا چرچ اس کے لیے دعا کر رہا۔ ان کی بھی ہر بدھ کو پریئر وہ دعائیا میٹنگ ہوتی ہے، وہ سارا چرچ دعا کر رہا، لیڈیز دعا کر رہی ہیں، سارے بڑے دل سے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اس بندی پر رحم کرے، آمین، اس بندی پر رحم کرے، شفا دے خداوند۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، پھر چیک اپ وغیرہ کراتی ہے، تو کوئی کینسر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے اس کے اندر، آمین، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاللویا۔ ہوا کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ سخت ابلیس نے اس کے مائنڈ کو کرپٹ کیا، خراب کیا۔ وہ سخت ناراض ہونے لگی ڈاکٹر سے کہ تو نے کیوں مجھے غلط رپورٹ دی تھی، پہلے والی رپورٹ، کیوں تو نے مجھے اتنا پریشان کیا جبکہ مجھے کوئی کینسر نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہے، کیوں تو نے میرے اندر اس کے اندر اتنی بٹرنس آ گئی کہ وہ ڈاکٹر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا کہنے لگ پڑی کہ اس نے مجھے غلط رپورٹ دیا اور مجھے اتنے دن تک اتنا پریشان کیا اور میرا سونا جاگنا حرام ہوا تھا۔ ایک دن ایسے ہی ہم صبح چرچ آئے تو سٹیلا نے کسی اور لیڈی سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے جس کے لیے ہم سب اور آپ سب دعا کر رہے ہیں۔ تو وہ کسی لیڈی نے بتایا سٹیلا کو کہ وہ تو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مہینے بعد پتہ نہیں 2 مہینے بعد کوئی اور جب ٹیسٹ ہوئے اس کے تو کوئی کینسر نہیں نکلا، تو وہ بہت پریشان تھی، وہ بہت اس کو غصہ ہے کہ ڈاکٹروں نے پہلے کیوں غلط رپورٹ دی۔ سٹیلا نے ان کو کہا کہ تم لوگوں کیوں بیوقوفی کر رہے ہو، کیوں اس کو تمہارے ذہن میں ایک بات نہیں آئی کہ سارا چرچ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، ہم سب اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خدا کی شفا کے لیے کسی نے سوچا بھی نہیں کہ اس کو کینسر تھا اور خدا یسوع نے شفا دی ہے اور اس کے نئے رزلٹ آئے ہیں، اس میں کوئی کینسر نہیں ہے۔ تم لوگ کیوں خدا کے نام کی تکفیر کر رہے ہو، کیوں اس کو برا بھلا کر رہے ہو، ڈاکٹر کو بھی کہہ رہے ہو، اور خدا نے جو اتنا بڑا کام کیا اس کو یاد ہی نہیں کر رہے، اس کو پیچھے ہی چھوڑ دیا، اپنی دعاؤں کا جواب بھی بھول گئے ہو کہ خدا نے کیا دیا ہے۔ ہاللویا۔ کبھی کبھی ابلیس ایسے کرتا ہے کہ ہم خدا کا انکار کریں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آمین۔ پر عزیزو، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے ہماری زندگی میں، ہم پہلے بھی 2-4 لوگوں کو جانتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور انہوں نے ایگزیکٹلی ابلیس نے ان کے ذہن میں یہی ڈالا تھا کہ وہ پہلی رپورٹ غلط تھی، اب جو آ گئی ہے بغیر بیماری کے رپورٹ وہ ٹھیک ہے۔ تو اور وہ لوگ ڈاکٹروں سے ناراض ہونے لگے، ہمارا ٹائم خراب کیا، ہمارے پیسے خراب کیے، ہمارا یہ ہوا، ہمارا وہ ہوا، اور ڈاکٹروں سے ناراض ہو گئے بجائے اس کے کہ وہ خدا کی تعریف کرتے۔ عزیزو، خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، عزیزو، ہمیں بہت دفعہ گواہی دینے کا موقع ملتا ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گواہی دینے کا موقع ملتا ہے اور ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اور گواہی دینے کا موقع کئی جگہ پر ہوتا ہے، ہمیں راہ چلتے ہوتا ہے، بس میں بیٹھے ہوتا ہے، ٹرین میں بیٹھے ہوتا ہے، جاب پر ہوتا ہے، چرچ میں ہوتا ہے، دعائیا میٹنگز میں ہوتا ہے، کہیں پر بھی ہو سکتا ہے۔ فون پر آپ کتنی ہم گپے مارتے ہیں مگر وہ نہیں بتاتے بات جو ہمارے ساتھ خدا نے کیا ہے اچھا کام۔ کئی دفعہ ہم برائیوں میں ضرور ہاں نہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، پر ہم وہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا کیا کام کیے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے، ان باتوں سے یہ لوکا کی انجیل میں ہے 21 باب اس کی 12 اور 13 آیت، لوکا کی انجیل میں ہے، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے۔ آج ایسا ہی ہو رہا ہے، ساری دنیا میں ہو رہا ہے سر، ٹھیک ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کوئی انوکھی بات نہیں کی، وہ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسے انہوں نے کہا تھا، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ ہاللویا۔ یہ تمہارا گواہی دینے کا
मौका होगा, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं गवाही देना। हालेलुया। जब भी मौका मिले गवाही देने का, गवाही दो खुदा यीशु की। हालेलुया। कि हम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, जिंदा खुदा पर ईमान रखे हैं, वो जिंदा है और उसने हमारी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, अजीब अजीब काम किए हैं। गवाही देने का जब भी मौका मिले उस वक्त गवाही दें। हमारे पास 2 3 4 एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मगर 2 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखी। सामरी औरत की कहानी आप अगर सब जानते हैं। खुदा यीशु मसीह एक जब यरूशलेम से सामरिया जा रहे थे, रास्ते में वो कुएं पर रुकते हैं, एक औरत पानी भरने आती दोपहर के वक्त में, और खुदा यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी तो पिला। तो वो कहने लगी कि ये यहूदी लोग तो सामरियों के साथ कोई वास्ता नहीं रखते, तू पानी मांग रहा है। तो वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू जानती तो कि मैं कौन हूं तुझसे बात कर रहा, तो तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो औरत कहती है कि तेरे पास तो कोई पानी भरने की चीज नहीं, कुआं गहरा है, तू मुझे कहां से पानी देगा। खुदा यीशु मसीह इसको कहते हैं कि तुझे नहीं पता मैं कौन बात कर रहा हूं, मेरे पास जिंदगी का पानी है, मैं खुद बहता दरिया हूं, मैं खुद जिंदगी का दरिया हूं, मैं हालेलुया वो ऐसा दरिया हूं जिसमें से जो कोई पानी पी ले तो वो हमेशा जिंदा रहता है। आमीन। वो औरत बाद में जब खुदा यीशु मसीह उसको उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, तो लिखा है यूहन्ना 4:28 आयत तो 30 से 29-30 आयत में कि वो औरत अपना घड़ा छोड़कर पानी भरने आई थी, मगर ये सब बातें सुनकर, सब कुछ जानकर, बरकत पाकर, छुटकारा पाकर, निजात पाकर, आजादी पाकर खुदा यीशु मसीह से हालेलुया जिंदगी का पानी लेकर वो अपना घड़ा ही छोड़कर वापस भाग जाती है शहर में। हालेलुया। सारे शहर को जाके गवाही देती है, और कोई उसमें कोई शर्म नहीं है कि खुदा यीशु ने मेरे लिए क्या क्या बातें कही हैं कि तेरे 5 पहले तू हस्बैंड कर चुकी है, अब ये जो हस्बैंड है, ये जो बंदा है इसके साथ रहती है, ये भी तेरा हस्बैंड नहीं है, तू वैसे ही बगैर शादी के इसके साथ रह रही है। उसने कोई इस बात में शर्म महसूस नहीं की, अपनी बेइज्जती की, अपनी इज्जत की कोई शर्म नहीं। सारे शहर को बताया जाके कि वो यीशु, कोई ऐसा, कोई मुझे समझ आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई क्रिस्तुस, कोई नबी, कोई वो खुदा का बंदा है, आओ उसकी बातें सुनो। उसने सबको गवाही दी, पूरा शहर निकलकर यीशु से मिलने के लिए आ गया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। खुदा यीशु में लूका की इंजील में 17 बाब में हम 10 कोड़ियों की कहानी देखते हैं। 10 कोड़ी आते हैं, ये भी वो ऐसा ही तरीके का वाकया है। खुदा यीशु मसीह यहूदिया से, यरूशलेम से सामरिया की तरफ जा रहे हैं, गलील में से होते हुए बीच में एक गांव में पहुंचते हैं। 10 कोड़ी दूर खड़े होकर कहते हैं, ए खुदावंद हम पर रहम कर। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु मसीह ने ना कोई दुआ की, ना कुछ भी नहीं, उनको कहने लगे अच्छा जाओ काहिनों को दिखाओ जाके। हालेलुया। जैसे वो पास्टर आए थे ना अनिल मल, किसी ने कोई भी, हम 2 सैटरडे संदीप लाल, सॉरी संदीप लाल पास्टर संदीप लाल फ्लोरिडा से आए थे। जब वो उन्होंने कलाम खत्म कर चुके, कहने लगा अच्छा किसको किसको क्या तकलीफ है, अच्छा आपको दर्द है, अच्छा खड़े हो जाओ, अब बैठ जाओ, ठीक होगी दर्द अच्छा आपको टांगों में दर्द है, निकल के बैंक से बाहर आओ, अच्छा अब वापस चले के बैठ जाओ, ठीक होगी दर्द। और ऐसे हुआ। खुदा यीशु मसीह ने वो कोड़ियों को कहते हैं जाओ काहिनों को दिखाओ जाके अपने आप को। वो कोड़ी चल के जाने लग पड़े, जाते जाते उन्होंने देखा हम तो ठीक हो गए। एक कोड़ी जो था, कोड़ी पहले ठीक हो गया, उसने कहा वो मैं तो ठीक हो गया, चल वापस आया। खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर के उसकी शुक्रगुजारी की, उसकी तारीफ की, उसको सिजदा किया। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो 10 के 10 सारे ठीक नहीं हुए, वो 9 किधर चले गए? ठीक तो सारे ही हुए थे, पर एक ही आया वापस गवाही देने के लिए, एक ही आया खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने के लिए, एक ही वापस आया खुदा उनकी तारीफ करने के लिए। खुदा यीशु मसीह ने वो जो उसके पास उसको तारीफ सिजदा करने के लिए आया, उसकी गवाही देने के लिए आया, खुदा यीशु मसीह ने उसके सर पर हाथ रख के कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। हालेलुया। उसकी उस गवाही को, उसकी उस टेस्टिमनी को, उसकी उस तारीफ को, सताइश को खुदा यीशु मसीह ने उसकी शिफा को उसी वक्त सील कर दिया। हालेलुया। क्योंकि वो वापस आया था यीशु के पास गवाही देने के लिए, शुक्रगुजारी करने के लिए। एक अंधा था, यूहन्ना 9 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदा जन्म का अंधा था,
اس کو خدا یسوع مسیح نے ٹھیک کیا، اور اس کو لوگ کہتے ہیں کہ تجھے کس نے ٹھیک کیا؟ خدا یسوع، وہ اندھا کہتا وہ نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ تو گناہ گار ہے، وہ تو آدمی ہے، گناہ گار ہے، وہ تجھے کیسے ٹھیک کر سکتا؟ تجھے اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ خدا، وہ اندھا کہتا ہے مجھے نہیں پتا وہ گناہ گار ہے، یہ کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے میں پہلے اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، ہاللویا، میں پہلے اندھا تھا اب دیکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، تم تو جانتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، تم خود ہی جا کے پوچھ لو، تمہیں ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا، وہ مسیحا ہے، وہ مسیح ہے، وہ مسیح ہے جس کا انتظار کر رہے ہو، جس نے میری آنکھوں کو کھولا ہے، ہاللویا، پریز گاڈ۔ پہلا سموئیل 30 باب اس کی 6 آیت میں، عزیزو، ہم گواہی کے سبب سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں، آمین، ہاللویا، ہم گواہی کے سبب سے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں جب گواہی دیتے ہیں۔ سموئیل کی کتاب میں داؤد نبی پہ ایسا ہوا ہے، جیسے ہم نے زبوروں میں پڑھا ہے کئی گواہیوں کے بارے میں۔ داؤد بادشاہ جب وہ اس کو دشمنوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے ایریے پر، اس کے شہر پر حملہ کر کے اس کی بیویوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، وہاں سے سارا مال مشال لے جاتے ہیں، تو لکھا ہے پہلا سموئیل 30 باب اس کی 6 آیت میں، اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا، آمین، بڑے شکنجے میں تھا۔ ہم بھی کبھی کبھی بڑے شکنجے میں آ جاتے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ وہ کیونکہ داؤد بادشاہ تھا اور داؤد کا کام تھا لڑنا جنگ دشمن سے، داؤد کا کام تھا، داؤد، وہ لوگ اس کو سنسار کرنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، آمین۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ غمگین ہو رہے تھے کیونکہ ان کے بیٹے بیٹیاں بیویاں سب کی سب کچھ لے گئے تھے، دشمن لے گیا تھا۔ تو اس کے بعد لکھا ہے، پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، ہاللویا، پریز گاڈ، ہاللویا۔ داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ کیسے مضبوط کیا؟ پہلا سموئیل 17 باب میں چلتے ہیں، آخری باتیں یہ ہیں، کوئر آ جائے، ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ پہلا سموئیل 17 باب اس کی 32 آیت سے لے کے 37 آیت تک ہم پڑھتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے جاتی جولیت، فلسطینی جاتی جولیت اسرائیل کی فوجوں کے سامنے روز 40 دن تک نکل کر آتا رہا، للکار کے کہتا تھا تم نکالو کسی کو جو میرا مقابلہ کرے۔ سب گھبرا گئے، سب ڈر گئے۔ داؤد چھوٹا لڑکا تھا، وہ جاتا ہے، اس کو بھی وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ وہ روز سنتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ فلسطی، اور داؤد کو بڑی غیرت آتی ہے اپنے خدا کے بارے میں کہ میرا خدا قدرت رکھتا ہے، میرا خدا قوت رکھتا ہے، اس کے نام میں قدرت ہے، اس کے جو میرا جو ایمان اس پر ہے اس میں قوت ہے، ہاللویا۔ داؤد کو یہ غصہ آتا ہے، داؤد ساؤل کے پاس جاتا ہے اور وہ ساؤل کو کہتا ہے میں اس کے ساتھ لڑوں گا جا کے۔ ساؤل کہتا تو چھوٹا سا لڑکا، وہ اس کو دیکھ جس کا 9 فٹ قد ہے، اس کے ساتھ تو کیسے لڑے گا جا کے، اس کی بھالا برچی کتنی سٹرونگ ہے۔ تو داؤد کہتا ہے، اور داؤد نے ساؤل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، ہاللویا۔ داؤد چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ساؤل بادشاہ کو کہتا ہے اس جاتی جولیت کے سبب سے، اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، ہاللویا، تیرا خادم جا کر اس فلسطی سے لڑے گا۔ 33 آیت، ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کے اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ اپنے بچپن سے جنگی مرد ہے، ہاللویا۔ کبھی کبھی ابلیس
یا مخالف کوئی بھی نیگیٹو بات ہمارے اندر ڈال سکتا ہے کہ تم دعا نہیں کر سکتے، تم یہ سچویشن بہت گہری ہے، یہ کام ہو نہیں سکتا. بہت سارے ایسی باتیں ڈاکٹر ڈالتے ہیں، وکیل ڈالتے ہیں، اور آس پاس کے لوگ ہماری زندگی میں ڈالتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یا یہ بہت بڑا کام ہے. وہ اسی طریقے سے ساؤل بھی داؤد کو کہتا نا 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 نا، وہ تو بچپن سے جنگی مرد ہے، تو اس کا مقابلہ، تو بھیڑے چرانے والا چھوٹا لڑکا ہے، تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تب 34 آیت میں تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے آپ کو اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر جھنڈ میں سے کوئی برہ اٹھا لے جاتا تو میں اس کے پیچھے پیچھے جا کر اسے مارتا اور اسے اس کے منہ سے چھڑا لاتا تھا، اور جب وہ مجھ پر جھپٹتا تو میں اس کی داڑھی پکڑ کر اسے مارتا اور ہلاک کر دیتا تھا. ہاللیلویہ. یہ داؤد کی ٹیسٹمنی تھی جو اس نے ساؤل کو سنائی. ہاللیلویہ. یہ داؤد کی ٹیسٹمنی تھی کہ اس کی زندگی میں خدا نے کیا کام کیا ہے اور اس کا کیسا ایمان ہے، اس نے ساؤل کو سنائی ہے. ہاللیلویہ. اور تیرے خادم 36 آیت، اور تیرے خادم نے شیر اور ریچھ دونوں کو جان سے مارا، سو یہ نامختون فلسطی ان میں سے ایک کی مانند ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کی ہے. پھر داؤد نے کہا کہ خداوند نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجہ سے بچایا، وہی مجھ کو اس فلسطی سے بھی بچائے گا. عزیزو، کبھی زندگی میں ہاللیلویہ، کبھی زندگی میں کوئی آپ کی زندگی میں کوئی سچویشن آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، آپ یا کسی اور کی زندگی میں بھی ہو تو آپ اس کو گواہی دے سکتے ہیں. عزیز میری بہن، میرے بھائی، میرے بیٹے، انکل جی، آنٹی جی، کچھ بھی ہے، بیٹا بیٹی، تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، پر میرے خداوند نے مجھے اس شیطان کے، ابلیس کے، شیر کے، ریچھ کے ہاتھوں سے مجھے چھڑایا ہے. میں نے اس کو شکست دی ہے، خداوند نے مجھے نجات دلائی ہے. آج بھی وہی خدا ہے، وہی زندہ ہے، وہی آج بھی کام کرے گا. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. اپنی گواہی میں وہ اس وقت بھی جب لکھا نا کہ وہ داؤد نے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا، اور داؤد نے وہی پرانی گواہیاں اپنے مائنڈ میں لا کے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا. ہاللیلویہ. وہی گواہیاں آپ سوچیں، ریکال کریں کہ خداوند نے اس سچویشن میں آپ کی زندگی میں پہلے کوئی کام ایسا کیا ہے، آپ کو کوئی کبھی شفا دی ہے، آپ کا کوئی کام کبھی رکنے پایا ہے. آپ ریکال کریں اور پھر اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کریں اپنی ہی گواہی کے سبب سے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. 17 باب 43 اور 47 آیت میں لکھا ہے، سو فلسطی نے، وہ جو فلسطی جاتی جولے تھا، اس نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی لے کر میرے پاس آتا ہے؟ اور اس فلسطی نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر داؤد سے پر لعنت کی. عزیزو، آج میری اور آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے فلسطی ہیں جو اپنے دیوتاؤں کو، دیوی دیوتاؤں یا اپنی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کا نام لے کر مجھ پر، آپ پر لعنت کرتے ہیں، کلیسیا پر لعنت کرتے ہیں، مسیحیت پر لعنت کرتے ہیں، خاندانوں پر لعنت کرتے ہیں. پتہ نہیں کس پہ سپیل بھیجے جاتے ہیں، جادو ٹونے کیے جاتے ہیں کہ ان کی بربادی ہو جائے، یہ بیمار ہو جائیں، یہ خراب ہو جائیں، یہ مارے جائیں، ان کا یہ کام نہ ہو، ان کے پیسوں کا نقصان ہو، کاروبار ختم ہو جائے. لعنت اپنے نام، وہ اپنی دیوی دیوتاؤں یا شیطانی طاقتوں کا نام لے کر ایسی لعنتیں وہ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. ہماری ہم اس کلیسیا میں بھی یا انٹرنیٹ یوٹیوب پہ بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے کہ کہاں سے لعنتیں ان کی زندگی میں آئے ہیں. پر آج میرے پاس گڈ نیوز ہے. ہاللیلویہ. میرے پاس انجیل کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، زندہ یسوع کی باتیں ہیں. فلسطی نے داؤد سے کہا، تو میرے پاس آ اور میں تیرا گوشت ہوائی پرندوں اور جنگلی جانوروں کو، درندوں کو دوں گا. اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار، بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، میں
रब्बुल फाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम वो यीशु नाम से उस बीमारी के पास आते हैं। यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है कि वो उसके आगे बीमारियां भागती हैं और अंधी आंखें खुलती हैं, लंगड़े अच्छे होते हैं। हालेलुया। हम सब खुदा की हुजूरी में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। खुदा की तारीफ में एक गीत में बेटी अमरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम खुदा के यीशु नाम से हम उसके पास आते हैं। हालेलुया। वो अपने अपने देवताओं के नाम से हम पर लानत भेजते, लानत करते हैं, पर हम आज पूरी कलीसिया, मैं और आप, हम दरवाजे बरकतें
पास आता हूँ खुदा तेरे लोगों को लेकर, इस वक्त इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इस कलीसिया में, इस सेंचुरी में, इस घर में जो बैठे हैं यीशु के नाम में, हालेलुया। खुदा प्लीज जब इब्लीसी कुव्वतें और तरह से खुदा यीशु शैतानी ताकतें तेरे लोगों पर लानत भेजती और लानत करती हैं, आज मैं खुदा अपनी कलीसिया को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कलाम सुना है तेरे यीशु नाम से आजाद करवाता हूं, यीशु नाम से आजाद, हालेलुया। हर जादू टोना तावीज़ की ताकतें यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। जितने यहाँ बैठे हैं खुदा यीशु तेरे यीशु नाम से शिफा पाकर वापस जाएंगे। इस वक्त शिफा तूने दे दी है, हालेलुया, तूने आजाद कर दिया है, हालेलुया। खुदा यीशु जो लोग घरों में हैं खुदा बेटे निकोलस के लिए दुआ करते हैं, जो भी उसको फ्लू वायरस इस वक्त है यीशु के नाम से वो फ्लू वायरस निकोलस से दूर हो जाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे घर में खुदा इस वक्त एक जो नए खुदा तू बंदा को लेकर आया है भाई मागरा के साथ जो आए हैं, हालेलुया। कुम्मी भाई यीशु के नाम से उसको भी आजादी मिल जाए, यीशु के नाम से आजादी मिल जाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। भाई आ गया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। सब इस भाई की तरफ हाथ बढ़ाकर इसको खुदा यीशु के नाम से हम इनके लिए दुआ करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आसमान खुला है, हालेलुया। मिल जाए बरकतें, हालेलुया। ओ खुल जाए दरवाजे, मिल जाए बरकतें। सब लोग इस बंदा की तरफ, इस भाई की तरफ, कुम्मी भाई की तरफ हाथ बढ़ाएंगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। अंदर से तेल लेकर